Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताज़ा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेते हैं, साथ ही नजर डालते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों पर। और दिन शनिवार का है। आज का दिन श्रोताओं आपके लिए खास है। खास इसलिए क्योंकि आप चाहें तो अर्थ जगत से संबंधित, देश की इकोनॉमी से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। 3 टेलीफोन लाइन्स हमने खोले हुए हैं, जैसा कि राजेश जी ने अभी बताया आपको। नंबर्स हैं 23 31 44 44, 23 42 10 50 और 23 310 464। किसी भी नंबर पर फोन करें, 011 एसटीडी कोड के साथ अपने सवाल पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद इकोनॉमिक एक्सपर्ट अमन अग्रवाल। अमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमन, नमस्कार, धन्यवाद। And now let's begin today's edition with the headlines in English. India-US talks on bilateral trade agreement concludes today in New Delhi. Benchmark domestic indices rise for the second straight week. Sensex and Nifty gain 0.7% this week. And US stocks fall after data stokes fear of weak economic growth and high inflation. All benchmark indices decline nearly 2%. भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ता आज नई दिल्ली में संपन्न। इस सप्ताह लगातार दूसरे सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में 0.7% की तेजी रही। सेंसेक्स 509 अंक तो निफ्टी 169 अंक बढ़ा। और टेक शेयरों की जबरदस्त बिकवाली और वृद्धि दर की आशंकाओं के चलते अमेरिकी बाजारों में लगभग 2% की गिरावट। Representatives of India's Department of Commerce and the Office of the US Trade Representative concluded trade talks in New Delhi today. The trade talk follows the India-US joint statement in February, wherein the two sides agreed to expand bilateral trade to reach $500 billion by 2030, including through the conclusion of a bilateral trade agreement. In order to realize the shared objective of promoting growth that ensures fairness, national security and job creation, both the sides have, through 4 days of discussions in New Delhi, broadly come to an understanding on the next steps towards a mutually beneficial bilateral trade agreement, BTA, the Ministry of Commerce and Industry said in a statement. The goal is to finalize its first tranche by fall 2025, the statement added. Sectoral expert-level engagements under the BTA will start virtually in the coming weeks and pave the path for an early negotiating round in person. The meeting in New Delhi follows the visit of Union Commerce and Industries Minister Shri Piyush Goyal to Washington, D.C. from March 4 to 6, 2025. We are joined in by our first caller online from Delhi. Manish, a warm welcome. Please ask your question. Yeah, my name is Manish Khandelwal. I want to ask a question. As per the real estate industry of this India, in our country, the profits of that companies are not going on the very top side, but the real estate
prices are going very high. Why they are not showing their profits if real estate is too high? Yeah, thank you for the question. देखिए, the real estate has nothing to do in specific with the growth factors of company. If you're talking of specifically only real estate companies, then the question is that real estate companies are heavily indebted, and they've had a negative wave in the last 2-3 years in particular, after a lot of reconstruction which has happened in many companies, and that's why you're not seeing too much buoyancy in real estate companies per se. But when you compare real estate independently of and independently Indian incorporations, then there is no direct correlation between them, because in the Indian corporations profitability is based on production and sales of their products, and the real estate is based on the perception of people and their appetite to consume and buy houses, both for investment as well as for living purposes, and that is more based on how they're able to make money either through stock markets or from other investments, and also the returns they're making on their incomes, and also the facility which banks offer, like loans, like they were not available in 1980s and 90s and even in 2000 to a large number of people. Today, access to loans, housing loans in particular, is quite easy, even when it comes to microfinance institutions who finances some of these loans. So that's where the difference in the two rates comes up. अनिल हमारे अगले कॉलर हैं दिल्ली से जुड़े हुए. अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत मार्केट मंत्रा में. नमस्कार जी, मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ, वरिष्ठ नागरिक हूँ, सरसा विहार नई दिल्ली से बोल रहा हूँ. तो मेरे को पैनल से जानकारी भी चाहिए कि किसी भी हेल्थ पॉलिसी, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे लाइफ हो, उसके अंदर जो खरीदते वक्त पॉलिसी जो आपकी हेल्थ कंडीशन डिक्लेयर किया जाता है, हैबिट डिक्लेयर किया जाता है, पॉलिसी के 4-5 साल बाद यदि आपकी हैबिट चेंज हो जाती है, जैसे कोई ड्रिंक नहीं करता खरीदते वक्त, ये 4-5 साल वो ड्रिंक करना शुरू करे, तो क्या ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी को कस्टमर को बताना जरूरी होता है? जरूरी होता है तो इसके बारे में जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को देना जरूरी है कस्टमर के लिए? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसका ड्रिंकिंग से कोई रिलेशनशिप नहीं है. आप ड्रिंक करें या ना करें, उसका रिलेशनशिप है आपको कोई बीमारी है या नहीं है, आपकी कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो, नॉन लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या कोई और ऐसी कैंसर है, इस टाइप की चीज़ें हैं नहीं है. अगर आपने वो डिक्लेयर कर रखा है तो जब आप क्लेम करने जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने उसको वो चीज़ को फैक्टर कर रखा है. दूसरा जो प्रॉब्लम ड्रिंकिंग की वो ये आती है कि कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, और अगर उसमें पाया जाता है कि आपने अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनीज अपना हाथ खींच लेती हैं, बिकॉज दैट इज नेग्लिजेंस. मतलब कि आपने नजरअंदाज की है चीज को और आपने गलती करी है, और इससे ये ऐसी गलती की है कि आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए ड्रिंक करते हुए, इस वजह से उसको हेल्थ को कवरेज को नहीं देते हैं. अदरवाइज कोई कंपनी, और वो जब डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि ब्लड में पाया गया है अल्कोहल, तब ये चीज होती है. पर आप पॉलिसी खरीदे, आप ड्रिंक करते हैं नहीं करते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है उस पॉलिसी. But I mean, perhaps he wants to know at the time of taking. Yes, if he has correct. He has no disease, but later he develops. He should report. आपको रिपोर्ट करना चाहिए. हर साल जो आप पॉलिसी लेते हैं वो 1 साल के लिए होती है. उसको आप पोर्ट भी करा सकते हैं, उसी कंपनी में रख सकते हैं. नॉर्मली कभी कभी कंपनीज 1 या 2 साल के लिए भी ऑफर करती हैं. जब भी आपको कोई डेवलप हो डिजीज, तब ड्रिंकिंग एक डिजीज नहीं है. अगर एक्सेसिव ड्रिंकिंग करते हैं आप तब हो जाती है, पर अदरवाइज रेगुलर ड्रिंकिंग में है, इट्स नॉट अ डिजीज. हाँ, तो उस केस में आपको बताना बहुत जरूरी है अपनी हेल्थ कंपनीज को, और वो फिर उसके हिसाब से आपका प्रीमियम भी बढ़ाते हैं ताकि आपका वो कवरेज उसी हिसाब से किया जा सके. बिल्कुल. और अमन, यहाँ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा आपकी इजाजत से, कि अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी आप चला रहे हैं और 3 साल तक उसमें कोई क्लेम नहीं हुआ है, तो 4थे साल से उसमें सारे डिजीजेस को कवर कर लिया जाता है. बिल्कुल. Joining us from Jaipur is Jitendra. A warm welcome, Jitendra. Jitendra, can you hear us? I think we've lost touch with him. We go on to Kumar Naik from Karnataka. A warm welcome, Kumar. Oh, thank you, sir. Good evening. Good evening. गुड इवनिंग. सर, मेरा नाम कुमार नाइक सर, कर्नाटका के सेवरालपुर से बोल रहा हूँ सर. नमस्कार. नमस्कार सर. सर, मेरे आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए था. इस वक्त फिक्स्ड डिपॉजिट FD करने के लिए किस सेक्टर बेहतर होगा सर?
नहीं, फिक्स डिपॉजिट के लिए सेक्टर का चक्कर नहीं। बैंकिंग मतलब बैंकिंग या पोस्टल ऑफिस है। हाँ ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए बैंकिंग पोस्ट ऑफिस दोनों सिक्योर हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो अंतराल आता है वो ये है कि आप सरकारी बैंक में करें या फिर प्राइवेट बैंक में करें या फिर फॉरेन बैंक में करें। अब इसमें जो आरबीआई का रूलिंग है वो सभी बैंक एक जैसे हैं, चाहे वो स्मॉल माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों, सबके लिए रूल्स एक ही जैसे हैं। बट क्योंकि हर एक की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, सरकारी बैंक में सरकार का नेतृत्व रहता है, बाकी सबकी सिक्योरिटी 5 लाख रुपए तक पर अकाउंट ही है जो आरबीआई का निर्देश है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का निर्देश है उसके द्वारा। इसलिए सभी बैंक एक जैसे हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स में थोड़ा रिस्क रहता है, पोस्ट ऑफिस भी वैसे ही, बट आपको ये देखना जरूरी है कि आपके पास क्या चीज आसपास है जहां पे आप जाके अपने बैंक से या पोस्ट ऑफिस से वार्तालाप कर सके। अगर आपके आसपास किसी गांव में है, छोटे क्षेत्र में है जहां पे बैंक नहीं है और पोस्ट ऑफिस है, तो फिर वहां पे जाके करें। अदरवाइज जो भी आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है और बहुत लंबे समय के लिए कभी कभी लोग कर देते हैं, उसकी जगह छोटा करें। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे आरबीआई बॉन्ड्स होते हैं जो सरकार निकालती है, टैक्सेबल बॉन्ड्स होते हैं, उनमें एक कंसिस्टेंट रेट आता है, वो पैसा सरकार के पास आ जाता है। पीपीएफ अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं, उसमें आदमी पैसा रख सकता है, उसमें भी अच्छा रिटर्न होता है, पर लॉन्ग टर्म बाइंडिंग होती है। इस तरीके से कुछ और भी बॉन्ड्स होते हैं जहां पे इंसान पैसा रख के अच्छा रिटर्न कमा सकता है और सेफ भी होता है। शंकर भोपाल से जुड़े हुए हैं। शंकर जी बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछ लें। नमस्ते सर। सर एक 4 साल का पिक्चर पेंट किया जाए तो आप क्या सोचेंगे? अभी ट्रम्प साहब आए हैं, उन्होंने ड्यूटी बढ़ा दी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑल द प्राइसेस विल गो अप। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो अमेरिकन फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, आज नहीं कल बढ़ाएगा, हो सकता है 6 महीने बाद बढ़ाए। उसका प्रभाव हमारे पर पड़ेगा क्योंकि हमारा पैसा फिर एफआईआई पैसे ले जाएंगे। तो व्हाट इज योर व्यू फॉर नेक्स्ट 4 ईयर? बाय द टाइम कुछ थोड़ा बहुत होगा, फिर ट्रम्प का जाने का टाइम आ जाएगा। अच्छा आपने एनालिसिस दिया, हाउ इट विल ऑल हैपन? नहीं, बड़ा अच्छा एनालिसिस। पिक्चर फॉर नेक्स्ट 4 years? Sure. I don't think I can paint any picture for next 4 years. I can only tell you briefly what is there. थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे सकते हैं। पहली बात तो ये समझिए कि इन्फ्लेशन जो जैसे ट्रम्प साहब ने कहा था पिछले 3 महीने में ईज हुआ है, मतलब कम गया है अमेरिका के अंदर। वहां पे प्रॉब्लम अभी आ रही है, कंज्यूमर स्पेंडिंग नहीं बढ़ रही है और ग्रोथ स्टैग्नेंट है, जिसे हम एक स्टैगफ्लेशन कहते हैं, एक स्थिति होती है। और वहां पे मार्केट्स भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं उसको पॉजिटिवली, जैसे टैरिफ के वजह से उनको करना चाहिए था अमेरिका के अंदर। तो ये प्रॉब्लम अमेरिका की और अमेरिकन्स की है। हम जो है हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो अभी फ्लाइट ऑफ टेक हुआ था पिछले 1.5 साल के अंदर, वो अब हमें आगे देखने को इमीडिएटली नहीं मिलेगा, बिकॉज जो निवेशकर हैं, इंटरनेशनल निवेशकर हैं, वो भी ये समझ चुके हैं कि अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है वो फेड के हाथ में पूरी तरह नहीं है, क्योंकि वो बार बार सोच रहे हैं कि हम रिड्यूस करेंगे, वो रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जो ग्रोथ फैक्टर है, जो ज़्यादातर ग्रोथ आती है किसी भी चीज़ में और इन्फ्लेशन में भी, वो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन, मतलब हमारी अंतरालीय जो खाना पीन का हिसाब किताब है, एक आम आदमी का है, कारखानों का जो है, इंडस्ट्रीज का है, उसकी वजह से आती है, अमेरिका की वजह से नहीं आती है। थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, पर इतना मूवमेंट अमेरिका की वजह से नहीं होता है। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें, जैसे एक फिक्स डिपॉजिट होते हैं हिंदुस्तान के जो है, वो भी बढ़ के जो है इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। $468 बिलियन, $658 बिलियन ऑलरेडी हो चुके हैं। 700 के स्तर पे थे पहले, अब 668 वापस आ गए, काफ़ी कम हो गए थे, अब बढ़ते जा रहे हैं दोबारा। आरबीआई भी बड़ा स्ट्रांगली जा रहा है, हमारा गोल्ड भी हम अपना वापस लेके आए हैं, उसका भी अब खर्चा कम होगा। तो इसलिए जो रेवेन्यू की स्थिति है, इकोनॉमी की स्थिति है, ग्रोथ रेट की बात करें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, तो हिंदुस्तान को देख के आप चलें, अमेरिका को देख के हिंदुस्तान में रह के काम ना करें। जितेंद्र हमारे साथ हैं जयपुर से। जितेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछ लें। हाँ धन्यवाद सर। थोड़ा सा हेल्प करिए। हमारा खाता गवर्नमेंट बैंक में है और मैं सैलरी पर्सन हूँ, तो मैं कंफ्यूज था क्रेडिट कार्ड लूं या ना लूं। लेने का उद्देश्य था कि सीखना चाह रहा था यूपीआई से ये करके कैसे कैसे उसका सिस्टम है, और नहीं लेना चाह रहा था कि उसका क्या नाम है, कर्ज में नहीं जाना चाहता क्योंकि इससे खर्चा होता है। तो अब तो अप्लाई हो चुका है,
तो क्या करें? देखिए जी, पहली बात, आप किसी का भी बैंक का, प्राइवेट या सरकारी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेंगे तो उससे आपका खर्चा नहीं बढ़ेगा जब तक आप उसके ऊपर खर्चा करते नहीं हैं। तो आपको खर्चा करना जरूरी है क्रेडिट कार्ड पे, ताकि वो खर्चा निकल के आ सके। और उसके लिए आपको हर एक बैंक अलग अलग पर 45 डेज का पीरियड मिलता है आपको, क्योंकि स्टेटमेंट आपकी हर महीने आती है, तो कुछ दिनों का आपको पीरियड मिलता है जहां पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता उस खर्चे के ऊपर। अगर अपनी आप पेमेंट लगातार करते रहते हैं या उसको अकाउंट के साथ लिंक करते हैं जहां पे सफिशिएंट बैलेंस होता है, तो आपको कोई भी खर्चा नहीं बैठेगा। आपने जो पैसा यूज किया, उल्टा आपको 10, 15, 20, 25 दिन का एक तो क्रेडिट बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, आपको क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, जो क्रेडिट स्कोर होता है जिसे हम सिबिल कहते हैं, और उसकी वजह से कभी आपको खुदा ना करे कभी किसी वजह से लोन लेना पड़े आपको आगे जाके लाइफ के अंदर, चाहे वो हाउसिंग हो, एजुकेशन हो, या आपको मेडिकल लोन हो, या कोई और लोन लेना पड़े, तो उसमें वो मदद करता है। Jai Kishan from Delhi joins us now. A warm welcome, Jai Kishan. जी नमस्कार, मैं जय किशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। हाँ जनाब। मेरी एज है 80 साल। हाँ जी सर। और मैं ब्लाइंड हूँ, टोटल ब्लाइंड हूँ। अच्छा सर। इस बजट के अंदर दिव्यांग लोगों के लिए कोई टैक्स में छूट नहीं दी गई कि दिव्यांग कितनी मुसीबत से कमाता है और इनकम टैक्स में टैक्स भी देता है जो कमाता है, तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया। नंबर 1। हाँ। नंबर दूसरा, ये जो आयुष्मान भारत है, मेरा भी कार्ड बना हुआ है, तो अगर मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ तो वो ये कह देते हैं साहब यहाँ तो जगह ही नहीं है, हमारे पास तो बेड ही खाली नहीं है। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए हम क्या करें साहब? और तीसरा मेरा क्वेश्चन, अभी आपने बैंक की बात करी कि 5 लाख तक ही आपको रिटर्न मिलेगा अगर कुछ गड़बड़ होती है। तो अगर एक बैंक में मेरा सेविंग बैंक अकाउंट है या मेरी एफडी बनाई हुई है मैंने, तो क्या तीनों को जोड़कर मुझे 5 लाख मिलेगा या अलग अलग में मिलेगा? भाई ये 3 क्वेश्चन मेरे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। पहली बात तो इस बजट की जब आपने बात करी, अगर आप 80 साल और 80 साल से ऊपर हैं तो सुपर सीनियर सिटीजन हो गए हैं आप, और सीनियर सिटीजन के लिए भी अब उन्होंने 1 लाख रुपए तक का टीडीएस रिडक्शन खत्म कर दिया है कि उसके ऊपर टीडीएस बैंक नहीं काटेगा। तो इसलिए ये कहना कि कुछ नहीं किया है वो करना है। दूसरा, इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना। अगर आप बैंक को लिख के देते हैं कि मेरा टीडीएस रिटर्न नहीं बनता है तो वो बैंक नहीं काटेगा, और ये छूट जो है वित्त मंत्री जी ने पिछले बजट में भी दी थी। दूसरी चीज जो आपने पूछी, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, कोई आर्थिक नहीं है उसमें। सरकार को हॉस्पिटल दुआ बनाने चाहिए, आयुष्मान के कनेक्ट करने चाहिए। आपकी जो गुजारिश है सरकार से बड़ी वाजिब है और वो एक फैसिलिटी बढ़नी चाहिए। अब उसमें मैं इकोनॉमिकली कुछ ऐसी बात नहीं कर सकता हूँ। तीसरी चीज जो आपने कही, इन्होंने कही थी बैंक के बारे में, देखिए जो 5 लाख की लिमिटेशन है वो पर अकाउंट है। सो सपोज आपके पास अलग अलग बैंक खातों में, अलग अलग बैंकों में आपने खाते खोल रखे हैं। आपने एक खाता एक बैंक में अकेला खोल रखा है, एक अपनी धर्मपत्नी के साथ खोल रखा है, एक अपने बेटे के साथ खोल रखा है, एक अपनी बेटी के साथ खोल रखा है, तो 4 खाते हो गए। इन चारों खातों पे 5-5 लाख। इसके साथ जो एफडी होगी वो उस एफडी के साथ मर्ज हो जाएगा अकाउंट पर। जो भी अकाउंट के साथ एफडी आपने क्लिप कर रखी होगी तो उसमें टोटल 5 लाख मिलेगा आपको। पर अगर आप इसी तरीके से खाते आप 10 बैंकों में खोलते हैं तो हर एक बैंक के अंदर आपको 5-5 लाख की लिमिट है। पर यह लिमिट तभी होती है जब वो बैंक फेल हो। अगर बैंक फेल नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप निश्चिंत रहिए। आज तक कोई भी बैंक हिंदुस्तान के अंदर ऐसा फेल नहीं हुआ जहां पे प्रॉब्लम आई हो और आरबीआई ने उसको ऐसे मर्ज करके किया हो जहां पे किसी का भी 1 रुपया खराब हुआ हो। तो मेरे विचार में इस धारणा को लेके ना चले। बाकी सड़क पे चलते हैं, कोई दुर्घटना हो सकती है, कल को हम होंगे नहीं होंगे कुछ नहीं कह सकते हैं। इस धारणा को लेके चलेंगे तो आदमी सड़क पे चलना बंद कर देगा। बाकी बैंकिंग क्षेत्र हिंदुस्तान का बहुत सेफ है और सराहाया जाता है विश्व के अंदर। अभी सेंट्रल बैंक को सेंट्रल बैंकिंग ने अवार्ड भी दिया है कुछ समय पहले कि किस तरीके से वो डिजिटलाइज और स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का सेंट्रल बैंक है, इसकी पूरी दुनिया में वाहवाही इसी वजह से होती है कि ये बहुत तरीके से इन्फ्लेशन को और वृद्धि दर को मैनेज करते हुए चलता है। दुनिया के बाकी देश जहां जूझ रहे हैं कहीं मंदी के संकट से, कहीं इन्फ्लेशन से, वहां रिजर्व बैंक ने बहुत काबिले तारीफ काम किया है। इसलिए मार्केट मंत्री के इस मंच से ये जरूर बताना चाहेंगे कि भारत के बैंकों में शायद ही किसी नेशनलाइज्ड बैंक में या प्राइवेट बैंक में ऐसी स्थिति आए और
एक दो जगह किसी ग्रामीण बैंक में या क्षेत्रीय बैंकों में ऐसी स्थिति आई भी है, तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको दूसरे बैंकों के साथ मर्ज कर ग्राहकों को कोई नुकसान नहीं होने देता है। इसलिए ऐसी सोच रखना ही नहीं है भारत की बैंकिंग सिस्टम को लेकर। रत्नाकर हमारे अगले कॉलर होंगे कोल्हापुर महाराष्ट्र से। जी बहुत बहुत स्वागत, आपका सवाल पूछ लें। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, मेरा सवाल है कि मैंने ई डिपॉजिट किया था एफडी का, तो 2022 में 29 मार्च 2022, और वो अभी 3 साल के बाद 3 साल के लिए क्या किया था 29/3/2025, यानी आज वो ड्यू हो गया। लेकिन बैंक ने क्या किया, वो डायरेक्ट वो उन्होंने 3 साल के लिए बढ़ाया 28 तक। मेरा मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन था कि मेरे अकाउंट में जमा कीजिए, लेकिन वो विदाउट माय कंसेंट उन्होंने 2028 तक बढ़ाया। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। हाँ जी, और क्या है? हाँ जी, इसमें यह है कि पहली बात तो बैंक को नॉर्मली फॉलो करना चाहिए। अगर उन्होंने किसी वजह से टेक्निकल एरर की वजह से या ह्यूमन एरर की वजह से ऑटो रिन्यू फीचर कर दिया है, आप अभी भी आज की डेट में भी बैंक के पास जाके उसको कह सकते हैं। अगर आप आज ही बता देते कि मेरी मैच्योरिटी हो रही है और मेरे को मैच्योर नहीं करना, मेरे खाते में चाहिए था, तो आज शाम तक वो पैसा आपके खाते में आ जाता। अगर आप ये चीज़ कल करेंगे तो कल आ जाएगा। आपको फर्क ये पड़ेगा कि एक दिन का जो उस पैसे पे लॉस होना है वो बैंक आपको भरक के नहीं देगा, जबकि करना चाहिए, बट बैंकिंग प्रणाली ऐसा नहीं करती, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो। तो अगर आप उनको बता देते हैं आज या कल में, तो कल आज तक आपको एक दिन का लॉस होगा। आज अगर आप बता देते, बिकॉज अब समय बंद हो गया है, 4 बजे तक बैंकिंग चलती है, तो उसमें अगर आप बता देते तो कर देते। अभी भी आप जाके जो ऑटो रिन्यू हुई है, अगर आपके पास ऑनलाइन एक्सेस है तो उसको क्लोज कर दीजिए। अगर आप क्लोज करेंगे तो जो ऑटो रिन्यू होकर मैच्योरिटी अमाउंट था वो आपके अकाउंट में सीधा पैसा आ जाएगा। उसमें कोई आपको लॉस नहीं होगा, कोई आपका पैसा नहीं कटेगा, उसमें कोई आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, बिकॉज हर एक बैंक 4 या 5 दिन का पीरियड होता है, उसमें वो पैसा आपको अगर ब्रेक करते हैं तो नहीं देता है, उसके बाद आपको ब्रेक करते हैं तो देता है। तो कभी आपकी ऐसी एफडी रिन्यू हो जाए तो वो 5-6 दिन का पीरियड के बाद ब्रेक करेंगे तो 1% पेनल्टी जरूर लगेगी कुछ बैंकों में, बट आपको फिर भी उसमें कुछ रिटर्न मिलेगा, जो सेविंग्स जितना नहीं तो सेविंग्स के आसपास हो जाएगा। So therefore it is important for him to do online or app banking. Yes, if he is because he e-device, so he said e-deposit, so I think he has access to online system. I think he can do that. What you're suggesting is the right thing to do. Shubrata from Bengaluru is with us. A warm welcome. Please ask your question. Good evening to Market Mantra team. Good evening. Namaskar. Actually, my question is a little bit different from stock market. You can say it's a funny question. I want to know about the Indian currency. Like, if Indian government prints the currency, then why government cannot print as much as required for to eradicate the poverty from India, and how much requirement is there? Very good question. First of all, जब सरकार प्रिंट करती है उसे सीनियरेज मनी कहते हैं, और वो सिर्फ भारत सरकार के पास सिर्फ 1 रुपया प्रिंट करने का राइट है। बाकी सारे रुपया जो है और कॉइन्स होते हैं, जो सिक्के आप देखते हैं, वो प्रिंट करने का राइट है। वो कितने का भी वैल्यू, अब ज़्यादा वैल्यू के भी सिक्के करने लगी है, फिर पहले भी वो 1 रुपये का ही सिक्का कर सकती थी। इन्हीं 2 चीज़ों का राइट है, क्योंकि इसके अगेंस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटी नहीं देता है। बाकी सारी करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करता है, और उसको देखना जरूरी है कि मनी सप्लाई कहते हैं, कितना पैसा मार्केट में है, कितना जाएगा, कितना सर्कुलेट होगा, और इसलिए भारत सरकार के पास ये राइट नहीं है कि कितना भी वो प्रिंट करके करे। कई बार सरकारों ने, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, बाहर की भी पहले सरकारों ने किया है जहां पे प्रिंट करके किया है, और उस केस में क्या होता है कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ जाता है, बिकॉज मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है उसको प्रिंट करके, क्योंकि वो बढ़ जाता है मिठाई की तरह, और उससे वो जो इन्फ्लेशन आता है वो कंट्रोल नहीं कर सकती है सेंट्रल बैंक। और काफ़ी सारे साउथ ईस्ट एशिया के देश भी, अमेरिका के, यूरोप के देशों में भी हमने देखा है इस टाइप की प्रॉब्लम है, और बहुत इसके ऊपर काम हुआ है। तो भारत सरकार के पास राइट नहीं है कुछ भी कभी भी प्रिंट करने का। जी, और वो जो बता रहे हैं कि ज्यादा नोट क्यों नहीं छाप देते, वो पॉवर्टी को खत्म करने का कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ। आपको मौका मिले तो जरूर गूगल पे जाएं और देखें कि वियतनाम में इस समय कितना इन्फ्लेशन चल रहा है। आप बहुत ज्यादा नोट छापेंगे तो कभी ये स्थिति भी हो सकती है कि एक चाय का प्याला खरीदने के लिए आपको 20,000 रुपए, 10,000 रुपए देने पड़े। बिल्कुल, और आपको काम करना जरूरी है अगर आपको पॉवर्टी हटानी है। लोगों को माध्यम देने और फैसिलिटीज देनी जरूरी है।
बहरहाल एक बार नजर डाल लेते हैं कि इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजारों ने कैसा परफॉर्मेंस किया। तो बता दें कि लगातार दूसरा सप्ताह ये रहा जबकि शेयर मार्केट बढ़ा है, प्लस में है, और पूरे सप्ताह के दौरान 0.7% बाजार बढ़े हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 509 अंक बढ़ा है, 77,415 पर पहुंचा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 169 अंक की बढ़त के साथ 23,519 पर पहुंच गया। हालांकि बीएसई मिड कैप में 0.7% और स्मॉल कैप में 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 51 पैसे मजबूत हुआ है। $1 की कीमत 85 रुपये 46 पैसे रही। Aman, the first story that we read about the India-US talks on bilateral trade agreement, we would like you to throw some light on this. Where did the tariffs come? Did they come in the discussions that were held between India and the US trade representatives? You see, we are having a trade of roughly about $120 billion with the United States. And what is happening with the United States is United States produces mostly a very expensive, high-end quality or high-end skill, technologically advanced quality products or defense or automobiles and things like this, which are not a common man consumption item. Now, what they have, which we have been happening is that if you see from very beginning of India's independence, it has been roti kapde makan, focusing on the poor, the middle class, the upper middle class, providing the basic amenities, which has been the focus of the government all through for a long time. So as a result, there have been huge tariffs which have been imposed, on at times custom duties, 100%, 200% on some of these luxury items. Now, when a country is producing only those luxury items and providing it to different countries, they are finding a disbalance because they are importing large amount of consumerable items like toothpaste, brushes, pens, t-shirts, shirts, where they are not imposing those tariffs. And this is where the fight between the US and other countries is, that they're saying that since the tariff balance is not there, because when we sell our expensive cars or other equipment which are high-end equipment, you are raising your curtain by putting custom duties. Reduce those tariffs. Otherwise, we have to impose tariffs. So it's an equitable gameplay. But please understand, those tariffs typically do not impact the common man per se directly. It's a big automobile car like Tesla, which is very expensive, as an example to take. Now, that car may be bought by maybe about 500, maybe 1,000 people, or maybe about 10,000 people in this country. That doesn't make India in real sense. So even if the tariff goes up or down, doesn't really make much difference. So this is where the tariff war is coming between India and US and other parts of the world. But in my opinion, the trade talks which are going on are to increase that trade and make it 4 times, 5 times in terms of the real trade impact. As a result, the MSMEs and the industry benefits in the long run, and the people at large benefit with a good product. Like when we opened up our economy in 1991 and all, when we liberalized, we are seeing a lot of products which are coming in. We had only 2 cars at one time. Typically we have a choice of n number of cars, and there is an intent competition which is benefiting people at large. So always that choice makes a benefit. So from that perspective, I feel it's a good relationship which is building up and it's going strong. बिल्कुल। एक कॉलर और बात कर लेते हैं प्रशांत से। प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछ लें। धन्यवाद सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द पैनल। जी, जल्दी पूछ लें प्रशांत। सर, मैं बस 2 छोटे-छोटे क्वेश्चन है मेरे में। पहला तो ये जानना चाहता हूँ कि इन इंडिया क्या हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं? इज इट स्टिल लीगल और नॉट? बिकॉज मेरे जो क्वेश्चन है मैं इसी क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। पहली बात, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर रखा है। अदरवाइज बिटकॉइन को होल्ड करना लीगल नहीं है। इट्स नॉट अ लीगल टेंडर। ओवरसीज आप करते हैं तो वहां की मार्केट ऑब्जर्व करेगी, पर टेक्निकली आप उसको नहीं। अगर आप उससे मुनाफा कमाते हैं तो जैसे कैपिटल गेन्स में होता है, ऐसे यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है, TDS। US markets declined yesterday due to sell-off in tech stocks after data stoked fears of weak economic growth and high inflation as the Trump administration ratchets up tariffs. The S&P 500 plunged nearly 2% to end at 5,581. The Nasdaq slumped 2.7% to 17,323. And thank you so much for being with us, Aman, and answering the queries of our listeners. Namaskar.
And before we close, the headlines once again. India-US talks on bilateral trade agreement concludes today in New Delhi. Benchmark domestic indices rise for the second straight week. Sensex and Nifty gain 0.7% this week. And US stocks fall after data stokes fear of weak economic growth and high inflation. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Namaskar. Market Mantra.